مذبح کی بھیڑیں۔ خورشید اکرم۔ مذبح کو جانے والے اس راستے پر بھیڑوں کے ریوڑ آتے رہتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ریوڑوں میں بھیڑوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بھیڑیں ساری ایک ہی ہوتی ہیں۔ پہلی صف کے پیچھے پیچھے ایک دوسرے میں گھسی گھسی چابک سے جلدی جلدی چلنے والی، انہیں ہانکنے والے بھی سبھی ایک سے ہوتے ہیں، جن کی مشترکہ شناخت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ہاتھ میں چابک لیے ریوڑ کے آگے پیچھے چلتے ہوئے اسے ہانکتے رہیں۔ ریوڑ کے ہانکنے والے عام طور پر گڈریا کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو جنگل میں چرانے لے جاتے ہیں۔ بھیڑیں دن بھر اپنی مرضی سے چرتی رہتی ہیں اور شام ڈھلنے سے پہلے انہیں ہانک کر باڑے میں واپس لے آیا جاتا ہے، سو انہیں اپنے ہکائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن جس راستے کا بیان ذکر ہے اس پر ہانکے جانے والی بھیڑیں جنگل کو نہیں، مذبح کو لے جائی جاتی ہیں، اور ان کو ہانکنے والے کچھ بھی کہے جا سکتے ہیں مگر گڈریے نہیں۔ ہانکنے کے کام پر معمور یہ 3-4 آدمی بہت دیر سے بھیڑوں کو ہانکے چلے جا رہے ہیں۔ بھیڑوں کو ہانکنا اب ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ یہ بہت دنوں سے اس کام پر معمور ہیں اور بھیڑوں کی فطرت جانتے ہیں۔ ویسے جیسا کہ یہ خود ہی کبھی کہتے ہیں کہ بھیڑوں کی کوئی خاص فطرت نہیں ہوتی، اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی فطرت نہیں جس کی وجہ سے انہیں کبھی کچھ زیادہ پریشانی ہوتی ہو۔ اگرچہ ان کے سر پر سینگیں ہوتی ہیں اور بلکہ بعض تو کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ہانکنے والوں کے ہاتھوں میں چھوٹی سی ایک چھڑی ہوتی ہے، جس کے سرے پر تقریباً 2 ہاتھ لمبی تیل پلائی ہوئی مضبوط ستلی بندھی ہوئی ہوتی ہے، جسے چابک کہتے ہیں، اور جسے ہوا میں مارنے سے ایک شڑاپ کی آواز ہوتی ہے۔ چابک کا استعمال کرنے کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے جب کوئی بھیڑ چلتے چلتے رکنے لگتی ہے یا ان کے منشا کے برخلاف ریوڑ سے نکل کر کسی دوسرے راستے کی طرف مڑنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ اس پر ایک آدھ چابک جما دیتے ہیں۔ چابک کی مار سے تل ملا کر بھیڑ سیدھے راستے پر آ جاتی ہے اور اس سے دوسری بھیڑیں بھی بدک جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں عام طور سے بے فکری سے چلنے والی بھیڑوں میں ایک طرح کی کھلبلی مچ جاتی ہے اور وہ سب چابک کے خوف سے ایک دوسرے میں گھسی گھسی چلتی ہیں۔ جو بھیڑیں کنارے کی طرف ہوتی ہیں وہ چابک کی مار سے بچنے کے لیے بیچ میں گھس جانا چاہتی ہیں۔ مذبح تک پہنچنے تک راستہ بھر ان میں آپس میں یہ دھکم پیل چلتی رہتی ہے، حالانکہ اطمینان انہیں وہاں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ ہانکنے والے بیچ میں گھس کر بھی چابک چلا سکتے ہیں۔ یہ بھیڑیں بہت دیر سے چل رہی تھیں اور تھک بھی گئی تھیں، لیکن انہیں رکنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہانکنے والے ہاتھ میں چابک لیے مستعدی سے چل رہے ہیں۔ ریوڑ کے بیچ میں چلنے والی ایک بھیڑ نے، جو بہت دیر سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کہاں ہانک کر لے جایا جا رہا ہے، اپنی گردن ذرا اونچی کر کے ریوڑ کے باہر دیکھا تو اسے اپنے آس پاس کی دنیا ویسی نہیں لگی جیسی وہ دیکھتی آئی ہے۔ بہت دیر سے کوئی اس کے اندر ٹہوکے مار رہا تھا، اس لیے وہ پہلے بیچ سے نکل کر کنارے آئی، جہاں چابک پڑنے کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا۔ کنارے آ کر کچھ دیر چلنے کے بعد اسے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر وہ اکثر چلا کرتی تھی اور اپنے باڑے میں واپس آ جاتی تھی۔ اس نے ایک بار رک کر اپنے ارد گرد غور سے دیکھ لینا چاہا۔ اس نے رک کر گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے بھر کے اس عمل میں ریوڑ اس سے 5-7 میٹر آگے نکل گیا۔ ہانکنے والوں میں سے ایک پلٹ کر پیچھے آیا اور ایک چابک سٹاک سے اس کے بدن پر پڑا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ دوسرا چابک پڑنے سے پہلے ہانکے کے اشارے پر لپک کر ریوڑ میں شامل ہو گئی۔ اس کا بدن چابک کے مار سے بلبلا رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک سوال اس کے اندر ٹہوکے مار رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی ایک بھیڑ سے پوچھا، یہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں لے جائے جا رہے ہیں۔ مگر ہم کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ جہاں روز لے جائے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ہم جہاں روز لے جائے جاتے ہیں یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ چپ چلتے چلو، ورنہ ابھی چابک پڑے گا۔ لیکن یہ ہم پر چابک مارنے والا ہوتا کون ہے؟ بھیڑ نے پلٹ کر اس سرکش بھیڑ کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس طرح کے سوال کر رہا ہے۔ اسے لگا یہ پاگل ہو گئی ہے، سو اسے چھوڑ کر بیچ میں گھس گئی۔ ذرا دیر پہلے جو چابک کی مار اس کے بدن پر پڑی تھی، اس سے ٹیس کی لہر ایک بار پھر اٹھی اور ایک بار پھر اس کے من میں یہ سوال تازہ ہوا کہ وہ کہاں لے جائی جا رہی ہے۔ اپنے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسری بھیڑ سے اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
اس में सोचने की क्या बात है, हम तो अपने आगे वालों के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या यह हमारे आगे वालों को कुछ पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। इतना कहकर उस भेड़ ने ऐसे चुप साध ली जैसे उसे इस तरह की बातों से कोई सरोकार न हो। लेकिन क्या हमारे आगे वालों को कुछ मालूम है कि हम कहाँ चल रहे हैं? उसने एक बार फिर कहा। इस बार चुप साध लेने वाली भेड़ की आंखों में पय बपय सवाल करने वाली इस भेड़ के तई शदीद बेजारी थी। उसने उसे गुस्से से देखा और उसके उल्टे सीधे सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आंख बंद करके रेवड़ के साथ चलने लगी। उस भेड़ ने, जिसके बदन पर एक चाबुक जोर का पड़ चुका था और जिसके मन में यह खदशा लगातार टहोके मार रहा था, एक बार फिर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। अपने आसपास की अजनबी और नामानूस फिजा को देखकर उसके अंदर खलबली सी हुई। इतनी देर में फिर रेवड़ आगे निकल गया था। हाँकने वाले ने पहचान लिया कि यह वही भेड़ है जो कुछ देर पहले भी रेवड़ से अलग होकर इधर उधर देखने लगी थी। इसलिए उसने उसे काबू में करने के लिए अब की बार और ज़ोर से चाबुक मारा, इतनी ज़ोर से कि उसके बिलबिलाने की आवाज़ आगे निकल गए रेवड़ की एक एक भेड़ ने सुनी। अब की बार उसे खदेड़ कर बिल्कुल आगे कर दिया गया। आगे की भेड़ कोई इस तरह सफ़ बनाकर नहीं चल रही थीं कि जो अभी आगे हैं वो शुरू ही से आगे थीं। इसका अंदाज़ा उस भेड़ को कुछ देर तक आगे आगे चलने के बाद हुआ, लेकिन उस वक्त सफ़ के तरतीब से होने या न होने और दो चाबुक की मार की टीसों से ज़्यादा वो सवाल उसके अंदर टहोके मार रहा था जो थोड़ी देर पहले उसके मन में आया था। उसने अगली सफ़ में अपने साथ चलने वाली एक भेड़ से ज़रा गुस्से से पूछा, तुम आगे आगे चल रही हो, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ ले जाए जा रहे हैं? मुझे क्या पता? तुम्हें अगर पता नहीं है तो चल क्यों रही हो? इसलिए कि हम इतने सारे एक साथ चल रहे हैं और ये कोई नई बात तो है नहीं। हम पैदा हुए थे तो हमने अपने बाप को इसी तरह चलते हुए देखा था और उसकी देखा देखी हम भी रेवड़ के साथ चलने लगे थे। लेकिन तुम क्या गौर नहीं करते कि ये वो रास्ता नहीं है जिस पर हम इससे पहले चला करते थे? क्यों, क्या हुआ? इस रास्ते में सब कुछ तो वैसा ही है। नीचे ज़मीन है, ऊपर आसमान है और हम सब इतने सारे साथ हैं। हम इसी तरह चलते रहे हैं और हमारे बाप भी इसी तरह। हमारे बाप? हाँ, ठहरो, क्या तुम्हें मालूम है कि इसी तरह एक बार हमारे बाप रेवड़ के साथ चले थे और आज तक वापस नहीं आए? क्या पता, खैर छोड़ो, ज़रा जल्दी जल्दी चलो। उसने चाबुक की तरफ देखा जो हवा में लहराया था। हाँकने वाले रह रह कर अपनी मुस्तैदी का मुजाहरा करते उनके कदम तेज़ हो जाते चाबुक हवा में लहराया और उससे भेड़ों को समझ लेना पड़ा कि उन्हें जल्दी जल्दी चलना है। तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम कुछ जानती नहीं और तुम जानने समझने की कोशिश भी नहीं करती, और ये पीछे वाले तुम्हारी देखा देखी चल रहे हैं कि तुम आगे हो और तुम्हें ठीक मालूम है। मेरे पीछे क्यों? मैं तो अभी ज़रा देर पहले धक्कम पेल में आगे आ गई। इतनी देर से तो मैं खुद पीछे थी। तुम ये जानती हो कि तुम पहले से पीछे थी, लेकिन जो पीछे हैं वो समझती हैं कि तुम और हम जो इस वक्त आगे आगे हैं, हमें सही सही मालूम होगा कि हम कहाँ हाँके लिए जा रहे हैं, और हमें तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और ये सब इस धोखे में है कि हम। अजीब एक सवाल उसके दिमाग में आया जिसकी वजह से उसको दो चाबुक पड़ चुके थे और जिसकी टीस अभी तक रह कर उसके बदन में उठ रही थी। उन्हीं टीसों ने एक और सवाल उसके मन में खड़ा कर दिया कि पाँव उनके हैं, और अगर वो अपने पाँव से चल रही है तो उन्हें यह मालूम करने का हक तो है ही कि वो कहाँ ले जाई जा रही हैं। और उसने तो सिर्फ ये जानना चाहा था कि वो सब आज कहाँ ले जाई जा रही हैं। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उसे इतनी सी बात जानने के जुर्म में कोड़े क्यों पड़े? सो चलते चलते इस बार उसने आगे की एक बूढ़ी भेड़ से एक साथ दो सवाल पूछे। एक तो यही सवाल कि वो कहाँ ले जाई जा रही हैं, और दूसरा ये कि उन्हें जानने का हक है कि नहीं कि वो कहाँ ले जाई जा रही हैं। बूढ़ी भेड़ ने तरहम आमेज नज़रों से उस भेड़ को देखा जिसको दो चाबुक पड़ चुके थे और जो उसके बावजूद एक साथ दो सवाल कर रही थी। उसे इसकी हट पर रहम भी आया और खौफ भी। चुनांचे उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी रफ्तार ज़रा सुस्त करके वो रेवड़ के बीच में आ गई। हाँकने वाले पूरी मुस्तैदी से रेवड़ हाँक रहे थे और भेड़ एक दूसरे में घुसी घुसी जल्दी जल्दी चल रही थीं कि हाँकने वालों ने देखा कि आगे की एक भेड़ जिसको दो चाबुक पहले ही पड़ चुका था, तेज़ी से लपकती हुई आगे निकली और रेवड़ से अलग एक तरफ मुड़कर दौड़ने लगी। हाँकने वाले ने एक दौड़ लगाई और शराक से एक चाबुक उसके बदन पर जमा दिया। भेड़ बिलबिलाई इतनी ज़ोर से कि एक बार फिर पूरे रेवड़ ने उसकी बिलबिलाहट की आवाज़ सुनी, लेकिन वो रुकी नहीं, वो भागती रही। बकिया भेड़ों को दूसरे हाँकने वालों ने रोक लिया। वो तादाद में इतनी थीं
इकट्ठी थीं मगर खौफ से थर-थर काँप रही थीं और उनमें ज़बरदस्त खलबली मची हुई थी कि किसी बात पर उन्हें भी इसी तरह चाबुक न पड़ने लगे। इधर भागती हुई भेड़ के बदन पर एक और चाबुक, और इस बार चाबुक की सुतली उसके बदन के रोए में उलझ गई, जिसको खींचने में उसके बदन का रोआं चर-चर की आवाज़ के साथ कुछ ज़मीन पर गिरा, कुछ चाबुक में लिपटा हुआ चला आया। भेड़ के बदन के जख्मी हिस्से से खून रिसने लगा। भेड़ अधमरी हो गई थी, लेकिन उसने अपने अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शदीद तर हो गया था। अब और भागने के बजाय उसने पलटकर अपनी सींगों से हाँकने वाले पर हमला करना चाहा। थोड़ी देर पहले जबकि उसे पहला चाबुक पड़ा था और जब उसका बदन इस तरह जख्मी नहीं हुआ था, उस वक्त अगर उसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इसी शिद्दत से जाग जाता और वो हाँकने वाले पर इसी तरह लपक पड़ती, तो शायद उस वक्त कोई दूसरा ही मंजर कलमबंद किया जाता। फिलवक्त हुआ यह कि उसे अपनी तरफ हमला करने का पोज बनाता देखकर हाँकने वाले ने तरातर कई चाबुक उसे लगा दिए, बल्कि 2-3 लातें भी जमा दी। भेड़ ऐसी अधमरी हो गई थी कि बिलबिलाते और गुर्राते हुए ज़मीन पर पड़ी रही। उसने पड़े पड़े पूरे रेवर पर नज़र दौड़ाई, जहाँ एक तरह की शांत खलबली मची हुई थी। भेड़ों में खौफ और उस जख्मी भेड़ के तई इंतहाई हमदर्दी थी, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। जख्मी भेड़ उस शदीद तकलीफ़ के बावजूद समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके इतने सीधे से सवालों का जवाब देने के बजाय उसे क्यों मारा गया, और यह सोचकर उसके मन में क्रोध आ रहा था। लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताब नहीं थी कि वो अपने ऊपर चाबुक चलाने वाले के पेट में अपनी सींग घोंप दे, और अब वो इसी क्रोध और बेचारगी में अपनी उन साथी भेड़ियों की तरफ देख रही थी जिनके सर पर सींगें थीं और जो अपने पैरों पर खड़ी थीं, जिनको कोड़े नहीं पड़े थे और जिनके अंदर इसके ख्याल में यकीनन इतनी ताब थी कि वो चाहें तो हाँकने वालों के पेट में अपनी सींगें घोंप दें।